Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry or study. I have taught that trends left to right and top to bottom, and today I will teach about first ionization energy, second ionization energy. Okay, write down heading first ionization energy, second ionization energy. First ionization enthalpy. First ionization enthalpy. जिसको हम बोलते हैं IE1. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. IE2. I like third ionization energy. Third ionization enthalpy. Like IE3 and so on. Fourth ionization enthalpy. Now first we learn about meaning, what is meaning and how to compare. Okay, now take one example. If sodium lose their one electron and it becomes sodium plus, losing of first electron, removal of first electron, removal of first electron, removal of first electron from neutral gaseous atom. Neutral gaseous, this one will be in gaseous state. Neutral gaseous atom. Gaseous atom. Removal of first electron. Important is that not one electron, first electron from neutral gaseous atom. Required energy is called first ionization enthalpy. Okay, important part is that first electron and in neutral gaseous atom. Second point is important, that means focus on star point. Required energy is called ionization enthalpy. Okay, that is definition of ionization enthalpy. We can write here IE1. IE1 means first ionization enthalpy. Now take another example. Example number 2. Now take Mg. Mg contain 2 electron in outer shell. First Mg remove their electron, first electron. One electron release. When one electron release, it become 281. Okay na? 282, 281, 282 electron. Now it release one electron. After that
it lose, sorry, here plus 1. After lose second electron. This one will be first electron and this one will be second electron. Listen here. And it become Mg plus 2 and their octet will complete 2 and 8. Now from Mg to Mg plus removal of first electron, that is known as IE1, and removal of second electron, not 2 electron, that is known as IE2. That means removal of second electron, not 2 electron, second electron, not 2 electron. There will be difference, second electron and 2 electron. Removal of second electron from monovalent cation. Required energy is known as second ionization enthalpy. Okay now, that will be second ionization enthalpy. Now if someone told that if we go from Mg to Mg plus 2, which energy will required? When we move from Mg to Mg plus 2, then it will be sum of ionization energy first and second ionization energy. That means here when we move from Mg to Mg plus 2, then first ionization energy and second ionization energy will be required. Removal of 2 electron. Listen here. Removal of 2 electron is sum of, I am writing here, removal of 2 electron from gaseous cation. Removal of 2 electrons is not second ionization enthalpy. Removal of 2 electron is not second ionization enthalpy. Removal of 2 electron is known as sum of IE1 plus IE2. Sum of IE1 plus IE2. Not a particular name. Okay now, so removal of 2 electron is sum of IE1 and IE2. Removal of second electron. Listen here. Removal of second electron. Removal of second electron from monovalent cation is known as IE2. Do you understand? चलो, तो मोस्टली हम एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, या 4 करेंगे, 5th करेंगे. अगर फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड करेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड करेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. अगर बाय द वे फोर्थ करना पड़ गया तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, 5th इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ गया तो 5th आयनाइजेशन एनर्जी, 6th इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ गया तो 6th आयनाइजेशन एनर्जी, 7 को निकालना पड़ गया तो 7 आयनाइजेशन एनर्जी, 8 इलेक्ट्रॉन को, 8वां इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ गया तो 8th आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. और ऐसे ही मोस्टली आउटर सेल में ज्यादा हम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो मोस्टली जो हमें मिलेगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज्यादा फर्स्ट और सेकंड मिलेगा, थोड़ा और
थर्ड तक हम जाते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। अब कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 ये रिमूव नहीं करता है, 4 में तो शेयरिंग होने लगता है ना, 4 में शेयरिंग होने लगता है, शेयरिंग होने लगेगा तो 4 लूज नहीं करते, इसलिए 4 तक हम बहुत कम पढ़ते हैं। कैन यू टेक आई ई एज सम ऑफ आई? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन तब जब तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो एक एग्जांपल्स और देखते हैं जिसमें हम थर्ड आयनेशन एनर्जी पढ़ेंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 283 होता है, एक लूज कर दिया 282 इलेक्ट्रॉन बच गया, और इस पे केटाइन आ जाएगा। अब इसमें से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +2 हो जाएगा, 281 हो जाएगा, और यहां से तीसरा लूज कर देगा, ये तीसरा है, 2 और 8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बराबर है क्या? अब चाहेंगे तो यहां से भी लूज कर सकते हैं, बराबर है क्या? चाहेंगे तो, लेकिन एनर्जी ज्यादा लगेगा। लेकिन हम क्यों चाहेंगे कि एनर्जी ज्यादा देके उसको लूज करवाएं? लेकिन चाहने के लिए तो हम इस इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज करवा देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कराएंगे तो I5 चला जाएगा। तो इस पहला इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना हम क्या बोलेंगे? IE1। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना, देखो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तीनों को लूज करवाना है, लेकिन 1 by 1। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दिया हमने, तो कितना बच गया? 2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना, दैट मींस जो एनर्जी लगेगा, जो इसको निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अब ये बन गया केटायन। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब ये क्या बन गया है? एल्युमिनियम प्लस। ये क्या था? एल्युमिनियम। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे, दैट इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी हम देंगे उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स जो ये वाला था, जो अपना एक बचा हुआ था, एक ये बच जाएगा। बराबर है क्या? अब हमें इसको निकालना है। अब ये बन गया एल्युमिनियम +2। अब एल्युमिनियम +2 बना तो यहाँ पर अब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो निकालने में ये और ये सम आ जाएगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी देंगे, दैट इज नोन एज IE3। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि थर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम निकाल कहां से रहे हो? एल्युमिनियम के +2 डाइवैलेंट केटायन से निकाल रहे हो आप। तो रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहां से आप निकाल रहे हो? रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट डाउन डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? डाइवैलेंट केटायन। required energy is called थर्ड आयनेशन एनर्जी IE3। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। आप इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल कहां से रहे हो? तीसरा निकाल कहां से रहे हो? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एल्युमिनियम से मैं एल्युमिनियम +3 बना दिया, तो अब क्या सोचोगे? एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 बनाने में क्या क्या एनर्जी लगा होगा? तो दिस वन विल बी सम ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा, फिर दूसरा निकला होगा, फिर तीसरा निकला होगा। तो अगर एल्युमिनियम से
अल्युमिनियम +3 बनाना है तो aluminum, when we convert aluminum and we lose 3 electrons, the required energy, loss of 3 electrons is not third ionization energy. Loss of 3 electron is, क्या होगा loss of 3 electron? Loss of third electron and loss of 3 electrons both are different. Loss of 3 electrons is क्या होगा? Sum of IE1, IE2, IE3. Sir, does platinum lose 4 electron? प्लेटिनम Pt 2 लूज करता है, प्लेटिनम पे चार्ज 2 होता है, +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये समझ में आ गया डेफिनेशन? फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस या तो 2 गेन करता है, नहीं तो फास्फोरस शेयर में भी जाता है। तो कौन कौन शेयर में जाएगा जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ ज्यादा हमें एस ब्लॉक के लिए पढ़ना है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, ठीक है। और आपसे ज्यादा एस ब्लॉक के लिए पूछा जाएगा, आपसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कि हम 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। हालांकि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज जल्दी होता नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है, बट एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल से बता दे रहा हूं कि आप, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि I4 कैसे होगा। तो सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 283। दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन +2, 282, ठीक है। अब तीसरा लूज करेगा तो Si+3, 281, ठीक है। और चौथा लूज करेगा तो Si+4, 2 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक चीज ध्यान रखना, आप इनका, आप जब आप ये पढ़ रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने आना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम जब कंपेयर करवाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिलिकॉन +2 का सर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमें तो मालूम ही नहीं है। तो सिलिकॉन +2 में सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लूज कर दो, 12 बच गया, 12 का तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने आना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि हम कंपेयर करते समय इस चीज को लेके आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे। अब देखो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन था, 2, 8, 4, 1, 2, 3, 4। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हम एनर्जी देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम बोल देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा इसको बोल देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, that is will be IE1, that will be IE2. This one is third electron. So required energy to remove third electron, and required energy required to remove fourth electron. तो आप and required energy to remove silicon to silicon +4, required energy IE1 plus IE2 plus IE3 plus IE4. तो रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ, बट ये चीज क्लियर हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लियर हो गया। अब एक चीज क्लियर करना, वो आपका की पॉइंट है, ठीक है। अब आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि डिफिनेशन तो आप समझ में आ गया होगा, लेकिन एमसीक्यू करने के लिए आपको इनमें किस पे की पॉइंट, आपको किस चीज पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि डिफिनेशन समझ में आ गया, डिफिनेशन से एमसीक्यू नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल तो बन जाएगा, लेकिन अगर एमसीक्यू कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान देना कैसे आपसे पूछा जाएगा, कंपेयर, हाउ टू कंपेयर, हाउ टू कंपेयर IE1, IE2, IE3, IE4, हम इसी का कंपेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब हमें यहां पर इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाला हमने तो एनर्जी दिया, इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाला तो एनर्जी दिया, इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव किया तो एनर्जी दिया, चौथे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो हमने एनर्जी दिया। तो क्या हर बार एनर्जी इक्वल ही होगा या डिफरेंट होगा? तो हमारा आंसर होगा डिफरेंट होगा। संस्कृति। नाउ वी हैव टू कंपेयर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, थर्ड आयनेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयनेशन एनर्जी। ये चारों आयनेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। चारों आयनेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। चारों एनर्जी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे ना। अब हम देखते हैं कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, यही हमें कंपेयर कराना है। तो इस चीज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये पता लगाओ कि हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव किया है। तो हमारा की पॉइंट यहां पर ये होगा, की पॉइंट नंबर 1, हर बार तुम्हें की पॉइंट लिखवाता हूं। की पॉइंट नंबर 1 ये होगा। अब मैं तुमसे बोलूं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे नॉर्मली सोचो बिना देखे हुए बोर्ड पे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाल रहे थे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाल रहे थे? हाँ, डाई पॉजिटिव केटायन से। नाम बताओ, अगर सिलिकॉन का एग्जांपल ले तो सिलिकॉन +1 से, सिलिकॉन +2 से, सिलिकॉन +3 से, सिलिकॉन +4 से। हाँ, किसी ने सिलिकॉन अल्युमिनियम भी भेजे हो, सिलिकॉन के रिगार्डिंग भेजो, सिलिकॉन +2 से या सिलिकॉन +3 से। तो वही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे बोला जाए कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करो, तो तुम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? सिलिकॉन +2 से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब IE3 बोला जाए तो आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव कर रहे हैं? फ्रॉम वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव कर रहे हैं आप? सिलिकॉन +2 से कर रहे हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि IE4 में इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव हो रहा है? चौथा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव मतलब आउटर सेल नहीं, मतलब एटम, वो कैसा होगा? फ्रॉम, कहां से रिमूव कर रहे हो? सिलिकॉन +3 से। दिख रहा है ना? अब जब तुम्हें कंपेयर करने के लिए आए, ऐसा तुम बना लिया करो एक बार, बरोबर है? बार बार मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, ऐसा एक बार बना लो तब दिखेगा। IE4 में इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाल रहे हो आप? सिलिकॉन +3 से। IE3 में इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाल रहे हो? सिलिकॉन +2 से। बरोबर है क्या? IE2 में इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव हो रहा है? फ्रॉम सिलिकॉन प्लस से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और IE1 में तो हमेशा हम जानते ही हैं कि न्यूट्रल एटम से निकलता है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल एटम सिलिकॉन। ये केवल इसी के लिए नहीं मैं बता रहा हूं, ये एग्जांपल लेके बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट, ये की पॉइंट नंबर 1। अब की पॉइंट नंबर 2, जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने आना चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन क्यों निकालना आना चाहिए? क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे।
तो सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सिलिकॉन प्लस 3 का, सिलिकॉन प्लस 2 का, सिलिकॉन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। और यहां पे तुम कॉन्फ़िगरेशन कैसे गलती कर दोगे, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो जो जितना चार्ज है 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज कर दो, 11 बच गया, 11 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। 14 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का होता है, 3 लॉस हो गया, 11 का 11 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। 14 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। 14 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। ये 2 काम आप करोगे कभी भी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बहुत गलती करोगे आगे चल के, तो इसीलिए बी केयरफुल। 2 पॉइंट्स पे आपको केयरफुल रहना है। ये 2 पॉइंट्स में अगर पकड़ में आ गया तो आगे हम इसका कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के यही प्रॉब्लम आता है। अभी तो लगता है इजी है, हम बना लेंगे, लेकिन आगे चल के जब लैंग्वेज में इसी चीज को पूछा जाएगा आपसे, तो आप इधर उधर फंस जाओगे। तो बी केयरफुल कि ये 2 हमें पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे बिना देखे बताओ कि यहां बिना देखे बताओ कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? थर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? सिलिकॉन के केस में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से निकालोगे? सिलिकॉन प्लस 2 से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करोगे? फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करोगे? सिलिकॉन प्लस 3 से। अच्छा ये मेरे को बताओ कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में कहां से निकालोगे? फोर्थ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में कहां से निकालोगे? हाँ, एल्युमिनियम प्लस 3 से। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में कहां से निकालोगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन हाँ, एल्युमिनियम प्लस 1। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। और ये जब ध्यान में आ जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। बरोबर है? क्या निकालने आना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं, हम कंपेयर कराते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर कराते हैं। क्या कंपेयर कराना है कि हमें इनका एनर्जी कैसे डिफरेंट है और कौन ज्यादा होगा, कौन सा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स को या दूसरे को या तीसरे को या चौथे को, किसको ज्यादा लगेगा। तो हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे? सिलिकॉन के केस में फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कहां से निकालेंगे? सिलिकॉन से। बरोबर है? तो अगर हमें फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कंपेयर करना होगा तो हम कहां से चेक करेंगे? सिलिकॉन से। यहां से निकाल रहे हैं ना, तो यहां के एनर्जी चेक करेंगे। सेकेंड जब कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे? सिलिकॉन प्लस से। और थर्ड जब निकालेंगे तो कहां से कंपेयर करेंगे? सिलिकॉन प्लस 2 से। और फोर्थ जब निकालेंगे तो कहां से कंपेयर करेंगे? सिलिकॉन प्लस 3 से। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं रहे हैं। तो हम क्या करें, इसमें से एनर्जी का कंपेयर करवा दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाला गया है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाला गया है, जिसको IE2 बोला गया है। बरोबर है क्या? तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को IE1 बोला गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को IE2 बोला गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को IE3 बोला गया है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को IE4 बोला गया है। तो क्यों ना हम इसको पकड़ के और कंपेयर करा दें। अब हम कंपेयर कराना जानते हैं, कंपेयर करा के तो यहाँ पहुंचे हुए हैं हम। कंपेयर कराते हैं ना हम, तो सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट निकालने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। ये हमारा काम हो गया, कहां से हमने निकाला। अब दूसरा काम हमारा रह गया कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकाले? तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 284, 283, 282, 281। कितने ऑर्बिट आ गए? 3 ऑर्बिट। ऑर्बिट आ गया सेम। अगर ऑर्बिट सेम आ जाएगा तो, ऑर्बिट अगर सेम आ गया तो कहां जाना है? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन के पास जाएंगे तो कितने प्रोटॉन? 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन। सबका पास प्रोटॉन क्या होगा? सेम होगा, 14 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन भी सेम, तो कहां जाएंगे? आउटर सेल के पास। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हमने आपको क्या बोला था कि इसको केजी समझने का।
तो बताओ यहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है? हमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स पे देखना है, पर इलेक्ट्रॉन्स पे देखना है। तो जो भी अट्रैक्शन होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, या 1 kg ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। हमने आपसे बोला था कि जितना कम kg का होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है, यानी सिलिकॉन +3 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन का, फिर सिलिकॉन +2 का, देन सिलिकॉन प्लस का, देन सिलिकॉन का। ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होगा, यानी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहां है? यानी सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी कहां लग रहा है? SI3 में। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। उसके बाद किस में होगा? सिलिकॉन +2 में। उसके बाद किस में होगा? सिलिकॉन 3 में, सॉरी सिलिकॉन प्लस में। उसके बाद कहां होगा? सिलिकॉन में होगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को हम क्या नाम दिए थे? IE4, यानी IE4, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे ये 4th 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने नाम दिया था IE4। तो IE4, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को क्या हम बोले थे? यहां से निकालने को IE3। IE4 इज ग्रेटर देन IE3। यहां से निकालने को हमने क्या नाम दिया था? IE2। तो IE2, और यहां से निकालने को हमने क्या बोला था? IE1। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे डिफिकल्टी कम होगा। समझ में आ गया? चौथे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, चौथे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट है। ये क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हुआ? कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने वाला कॉन्सेप्ट पहले ही रहेगा, जो पहले हम जानते थे, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना। बस इसमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। की पॉइंट यही है आपका कि कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाले और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एक की पॉइंट ध्यान में रखने का, कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट है। बाकी हम ऑलरेडी जो पहले से जानते थे कंपेयर कराना, हमारा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। बस उसमें ये चीज विशेष ध्यान में रखना है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमें 2 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें कंपेयर करा देना है। कंपेयर में नंबर ऑफ ऑर्बिट, फिर प्रोटॉन, देन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो IE3 में यहां डिफिकल्ट है। यहां से निकालने को हम नाम क्या देते थे? IE4। ओके, क्लियर हो गया सब? चलो इसके आगे हम कल कंपेयर करवाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे हम कल कंपेयर कराते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।